वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल। इस बार का लोकसभा चुनाव, जिसे चुनाव आयोग ने नाम दिया देश का महा त्योहार। इस बार कुल मतदाताओं की अगर हम संख्या देखते हैं, 90 करोड़ 87 लाख मतदाता थे, जिनके सामने 8026 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आप अंदाजा लगाइए, इतने मतदाता, जो कि बड़े बड़े देशों की अगर कुल आबादी देखें तो उससे कहीं अधिक। And what is very interesting and encouraging about these elections is that women have come out in full power. Equal number of women as men came to voice their aspirations through their franchise. जसलीन, सबसे जो कमाल बात है इस बार की, इस बार सब कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जनता ने इस बार, अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, तो 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो ये कुल मतदाताओं का 67.47% हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए, इतने मतदाता थे और लाखों चुनाव कर्मी इस चुनाव को सफलतापूर्वक जिन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद हम इस अवसर तक पहुंचे हैं। And in this, a staggering 84.3 million voters, including 15 million between the age of 18 and 19, became eligible to vote for the first time. और अब भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पधार रहे हैं। The Army Chief General Bipin Rawat. This ceremony has a ceremonial aspect, an emotional aspect, and of course a national aspect, and therein lies the power of these visuals that are being brought to you by the team of Doordarshan. And there you can see in the far distance the Jaipur column, topped by the Star of India. We've been talking about how spectacular the elections have been, how huge everything is. And the forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. An impression of controlled power, and as we look at the numbers here, this is representative, a microcosm of what India is. Mrs. Nirmala Sitharaman arriving at the venue. In fact, when the council is going to be sworn in, there is an acknowledged fact that these leaders enjoy the unique position as the defenders and protectors of the Constitution. Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi. Warm greetings all around. Dr. Murli Manohar Joshi. The elders have a special place because we all look up towards them for their wisdom. That's right, Jasleen, and it's also about upholding democratic traditions, and traditions being the critical word here. And especially our cultural traditions. Absolutely. The Shankaracharya with Mr. Rajnath Singh. राजनाथ सिंह और उनके साथ शंकराचार्य, उनके ठीक पीछे गिरिराज सिंह। Leaders from different walks, different spheres, actually basically leading people, inspiring people, and all working for upholding the cherished values and established conventions
but all around the cornerstone of our constitution, Jasleen. That is what binds us together, and therein lies our togetherness. And what can be more beautiful and more empowering than to have spiritual leaders here to shower their blessings on the occasion? That's right. A modern nation is built on the pillars of equity, democracy, secularism, and justice. And every leader, as he or she takes oath to this high office here today, reassures each and every Indian's faith, which is reposed in its leaders, that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead, and enrich the fabric of the nation. Mr. Narendra Modi, in his speech to NDA parliamentarians, shared his vision of the new government through two slogans. He expanded his earlier popular slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, to Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Together we grow, together we prosper, and together we build a strong, inclusive India. Prime Minister Modi has also given a new slogan, NARA, that is National Ambition, Regional Aspiration, to take the entire country forward towards a new dawn of development and prosperity. That's right, and when we want to move ahead in the Committee of Nations, that's where our international relations, our foreign policies always count. And we have leaders from BIMSTEC nations over here invited specially, which is of course a regional grouping, and the importance of its growing both in economic and strategic terms cannot be undervalued. Chaudhry Biren Singh. As the special invitees trickle in, our viewers get a glimpse from different angles, strategically placed cameras. रतन टाटा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, गौराज. Absolutely, a pioneer and an industry captain. Anupriya Patel. कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल. There is the process of organic renewal where younger and younger leaders come in, but we always respect those that gave us this foundation. जी, और सुमित्रा जी, सुमित्रा महाजन, लोकसभा की अध्यक्ष. और एक बात जो अटकलें लगाई जा रही थी, अभी जो मंत्रिमंडल के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसको देखकर वो अटकलें भी समाप्त हुई कि वहां हम सब ने देखा कि अमित शाह वहां बैठे हुए थे, तो इसका मतलब वो जी आशा भोसले जी, जी बिल्कुल. the evergreen voice of Indian films. In a sense, she has changed the way the heroine is given voice, isn't it? देखिए रजनीकांत, एक एक करके ऐसी विभूतियां यहाँ आ रही हैं जिनको पर्दे पर देखा है, जिनको सुना है, जिनसे लोग और पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं. And the most beautiful part about the world of cinema is that irrespective of language, it breaches all barriers that we have, and cinema has a language of its own. It connects us, it unites us, it shares its sensibilities with us, and these are stars from different regions, of course, with a pan-India following, and therein lies the beauty. Less divides us, more unites us. Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister, arriving for the swearing-in ceremony here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. ये विदेशी राजनयिक और इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
का आगमन। यहाँ पर महान विभूतियाँ हम आज देख रहे हैं और राष्ट्रपति भवन इस इतिहास का गवाह रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग आते रहे हैं। और संजीव, शायद सबसे पहले नेता जो यहाँ आए थे वो महात्मा गांधी थे। बिल्कुल जसलीन, और वो तब आए थे जब ये राष्ट्रपति भवन, तब ये वाइसरॉय हाउस कहा जाता था, उसके खुलने के 2 दिन बाद ही वो यहाँ आए थे गांधी जी, जब लॉर्ड इरविन यहाँ थे। और इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी सुपुत्री प्रतिभा। A little known fact is that when Mahatma Gandhi came here to meet the Viceroy Lord Irwin, he carried with him a little pouch of salt to add to his tea, because he was protesting against the British salt tax. A series of meetings between Mahatma Gandhi, जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, as I was saying, the series of meetings between Mahatma Gandhi and Lord Irwin finally culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. We earlier spoke about the BIMSTEC nations being invited, and of course there is a strategic reason behind it. It's home to 1.6 billion people, so nearly 22% of the world's population are in the BIMSTEC nations. Sadhguru Jaggi Vasudev and Sri L.K. Advani all greeting each other, understanding the importance, reverence and the celebration of the moment. जी, और वहीं स्वामी अवधेशानंद गिरी और साध्वी रितंबरा भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डॉक्टर शशि थरूर, So party lines, party politics actually of no consequence. और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। You're absolutely right, Gaura. At this moment, one would never have imagined the kind of arduous elections we've had, or where so much was going on, and there's a sense of bonhomie and friendship right now here. जी, जब भी ये बात आती है कि बहुत लंबा चुनाव और इतने चरण, तो जाहिर सी बात है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारियों का भी हम सबको एहसास होता है। I think at a deeper level, Ghislaine, there is an understanding that people move on and people go, but it's the nation that stays and anchors everyone. And that realization is what brings people together on occasions like this. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी। And on occasions like this, it's not only like-minded countries like the BIMSTEC that come together with a common commitment to peace and prosperity. They're like-minded people with a common commitment to the nation's peace and prosperity. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। A multitude of people here at the very ceremonial and beautiful forecourt of Rashtrapati Bhavan. And राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिस तरह से ये चुनाव एक महा त्योहार रहा है, उसी तरह से ये एक महोत्सव लग रहा है इस वक्त। किसी भी त्योहार को मनाने की जो तैयारियां होती हैं वो कुछ कुछ ऐसी ही हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। So all gathering here one by one, eagerly awaiting in a short while from now when the President Shri Ramnath Kovind will come to administer the oath of office in secrecy. And the Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of the world's largest democracy, a marvelous testimony to the possibilities in architectural excellence too. With its aesthetically assigned proportions and elegantly designed interiors, it has been host to numerous defense and civil and official ceremonies and celebrations. श्रीपद नायक जो गोवा से आते हैं, और जो बात अभी लोकतंत्र के इस त्योहार की हो रही थी, तो त्योहार की तैयारी के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, जो हमारे चुनाव हैं, वो भी इस त्योहार के लिए सरकार को चुनना मतदाताओं द्वारा ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। और किरण रिजिजू You're right. The Election Commission had a very important role to play in these elections and, in fact, in all elections in India. जसलीन, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर उन पर हम नजर डालें तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में इस बार 10,38,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जी। कल्पना करिए, और इनमें से 2,69,000 तो शहरी क्षेत्रों में थे और 7,68,000 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में थे। जब भी हम बात करते हैं कि भारत एक विशाल देश है, तो इसको शायद इन आंकड़ों से जरूर समझा जा सकता है। इसमें एक चीज और भी है। पिछली सरकार में, ऑफ कोर्स वी कैन सी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी, और उनके ठीक पीछे त्रिवेंद्र रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ये वो योजनाएं थी जो लास्ट मैन तक पहुंचने वाली योजनाएं थी, जिनमें there were so many programs on health, nutrition, and we see the BJP member of parliament, जी। सनी देओल, और उनके साथ उधर आप देखिए संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान, सनी देओल जिन्होंने गुरदासपुर से चुनाव जीता, मधुर भंडारकर। I think one of the reasons we call this a celebration and a tyohar is because it's neither the post nor the designation nor the office which is celebrated. It's the process, it's the participation, and that's where the numbers take center stage or get foregrounded. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, और सबसे बड़ी बात यही है जो बार बार हम सब कह रहे हैं, इतना बड़ा ये आयोजन है और देश के हर कोने से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे लोगों ने जरा कम देखे हैं। इनके तो चेहरे को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं, लेकिन कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए। We are seeing the arrival now of heads of state of the BIMSTEC countries, the foreign invitees here. And this is Dr. Lotte Schering, who is being accompanied by his wife, Dr. Ugen Dem. Dr. Lotte Schering, of course, is a urologist. In fact, in 2007, he was the only urologist in his country, and his wife is a well-renowned psychiatrist. भूटान के माननीय प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और उनकी पत्नी डॉक्टर उगेन डेम, हमारा पड़ोसी देश, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। So there is a bonhomie, there's a camaraderie which normally we don't get to see, but over here we are seeing that. Mrs. Sonia Gandhi
takes a place next to Rahul Gandhi. राजीव प्रताप रूडी, और जिन्हें हमारे लोकतंत्र से सीखना चाहिए, उनको ये जरूर सीखना चाहिए कि चुनाव में विरोधी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए फिर से एक होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और इस वक्त जो अटकलें लग रही हैं, एक तरह से गेस वर्क चल रहा है, who are going to be the ministers in the council of ministers of the prime minister? बिल्कुल जसलीन, और जैसा मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तस्वीरें जो हमने दिखाई थी, उन कुर्सियों पर हमने देखा मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे उसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हेमा मालिनी, She is a member of parliament from Mathura. मथुरा, दूसरी बार चुनी गई हैं वहां से। That was Jayant Sinha. अर्जुन मुंडा। So all across we're seeing that, there is an inscription that runs through the three sides of the Jaipur column, and everybody here exhibiting that in thought, faith, in word, wisdom, in deed, courage, in life service. So may India be great. भूटान के माननीय प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। Bhutan, the country with a gross happiness index, which actually values happiness, small mountainous region. And as people continue to pour in and stream in, the air of festivity and celebration getting stronger and stronger. Mrs. Sushma Swaraj. संजीव, आप श्री अमित शाह की बात कर रहे थे, वो भी फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के। जी देखिए, ये कई चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करें तो बड़ी कमाल हैं। मोदी जी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और अब दूसरी बार जीत कर आए हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है। We earlier spoke of a higher women representation, not only in the audience, not only in the council that we propose, but also in the number of Lok Sabha winners. 78 women elected representatives are there this time, compared to 61 in 2014. And of course, we had a fabulous voter turnout, an average one of 67.47%. And not to forget, 1.5 crore first-time voters, young people who exercised their choice. And today, the choice of many of them will be sworn in. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी, भाजपा नेता राम माधव, A beautiful blend of red and cream sandstone led an aura of unique timelessness and dignity to this place. And as we identify the people who are coming here, because there's a constant stream from the 2 entrance points and the 2 gates that we have over here, and slowly, because there are so many fresh faces, so many new faces, it is a truly imposing ceremony. करण जौहर, जाने माने फिल्म निर्माता,
These are spectacular views of Rashtrapati Bhavan, which we can see from one of our Jimmy Jib cameras. In the foreground is the Jaipur column, and we can see just the tops of the North and South block. And this is this limousine. Mr. Pravind Kumar Jagnot, Prime Minister of the Republic of Mauritius, accompanied by his wife Kavita Jagnot. They have a long connection with India because Mr. Pravind Kumar Jagnot can trace his ancestry back to the Ahirs of Bihar in the 1800s. जी, और सभी को याद है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनके पिता, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ अभी पधारे हैं. And that's why the arrival of these foreign dignitaries is a natural platform, because of BIMSTEC being that platform to build a common future, and as you said, Jasleen, a shared heritage, shared values, and shared ways of life. We have the President of Myanmar, Mr. Wee Myong. Our ties as a nation with Myanmar are also long as the land border of over 1,600 kilometers we have with that country, including a maritime boundary. And this is in the Bay of Bengal. In fact, 4 northeastern states, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram, have a boundary with Myanmar. Both countries share a heritage of religious, linguistic and ethnic ties. In fact, Myanmar is the only ASEAN country adjoining India and therefore our gateway to Southeast Asia. The President of Kyrgyzstan, His Excellency Shoronboy Jibenkov, who is also the current chair of the Shanghai Cooperation Organization. किर्गिज गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति शोरनबॉय जनबेकॉफ. Kyrgyzstan and India share long ties, and we see the arrival of the Prime Minister of Nepal. नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती राधिका शाक्य. Nepal, of course, has very close ties with India. There are citizens from Nepal who work freely within India. A lot of trade, bilateral cooperation, support. As close neighbors, India and Nepal share unique ties of friendship and cooperation, characterized by an open border and deep-rooted people-to-people contacts of kinship and culture. श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना. Sri Maitripala Sirisena, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, arriving here at the forecourt for the swearing-in ceremony of
Shri Narendra Modi and his Council of Ministers. The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. We share cultural, religious, and linguistic interaction. ये विशेष मेहमान जो पश्चिम बंगाल से आमंत्रित किए गए हैं, Very excited to be here and I think happy to be here. A first in this place for many of them. And I think it is excitement in that participation that actually gives color and meaning to a celebration or to an occasion like this. These are the would-be council of ministers of the new government. देश को प्रगति और विकास की राह पर चलाने के लिए इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और एक एक करके यहाँ पर बिम्स्टेक और मॉरिशस और किर्गिस्तान के जो प्रमुख हैं धीरे धीरे यहाँ पधार रहे हैं और जैसा हम सब जानते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद शपथ दिलवाएंगे। This is the President of the People's Republic of Bangladesh, Shri Mohammad Abdul Hamid, along with the First Lady. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. Mrs. Rashida Khanum, accompanying Mohammad Abdul Hamid, the President of the People's Republic of Bangladesh. इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने, मधुर और बहुत नजदीक के हैं और जाहिर सी बात है इतना बड़ा अवसर हो तो अपनों के साथ ऐसे अवसर पर खुशी बांटने से और बढ़ती है। And a very critical participant is the central dome of Rashtrapati Bhavan, imposing, beautiful, actually giving complete anchoring to this whole vista over here. संजीव, आपने कहा अपनों के साथ खुशी बांटने से खुशी और बढ़ती है और ऐसे मौक़ों पर जब किसी को मेहमान की तरह बुलाया जाए तो वो अपना हो ही जाता है। बिल्कुल, और शैलेंद्र की पंक्ति याद आती है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। And this has been the policy of our country. हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। And not only a policy, Jaslene, it's right into our tradition when we go right from our homes and our small communities to the larger ones. This is a core which runs through and through. We have Shahid Kapoor also here, we just glimpsed his face in the crowd, another cine star from the Bombay film industry or Bollywood. There are close to 8,000 people present here today. It's like a mini India, isn't it? बिल्कुल, और ये जयपुर स्तंभ के नज़दीक से हमारा कैमरा, अगर हम इसकी पूर्वी दीवार की बात करें जयपुर स्तंभ के, तो उस पर नई दिल्ली का नक्शा भी उकेरा गया था। So slowly as the seats are filling up, we know that one seat is going to be taken up by this very pretty lady. We just glimpsed her. We'll of course come back with the camera. There she is, Kangana Ranaut, who is also another Bombay film industry star. ब्रजेश शर्मा स्वामी अवधेशानंद गिरी से बातचीत करते हुए, और एक झलक हमने डॉक्टर महेश शर्मा की भी वहां देखी।
भावी मंत्री जो अब से कुछ ही देर बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इस बार के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो ये भी सब मतदाताओं को मालूम है कि इस बार पहली बार वीवीपैट का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। This evening, taking oath will be cabinet ministers, ministers of state with independent charge, and ministers of state. I think what's also beautiful to note here, Jaslina, the shots that our camera positions are giving. You know, we have Jimmy Jibs, we have special cameras, advanced lenses, and to get a sense of how large the audience is, how diverse it is, and of the whole beautiful area and vista. I think if you're physically present over there, you may not be able to get the sense that our viewers are getting through our cameras. And the viewers will be at home under the fan in cool environs. Yes. It's a fairly warm evening, as well, evenings in May are bound to be in the heartland of India, which is Delhi. But fortunately, the sun has gone down, so the heat is a little less. The VIP arrival continues. And we'll get to know in a moment or so who the VIP guest is. Although one can take a guess quite easily. There are two entrances to the area, and this is the one which is on the left of the podium. There is a sudden air of anticipation and excitement. People are trying to see who has come here. And as the clock ticks closer to 7 p.m., we are getting ready. We are in the last moments of the oath-taking ceremony. प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, जो दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। The man of the moment who will take oath of secrecy and office for the second time as Prime Minister of India. A cheer going up in the crowd. It was in 2014 that Shri Narendra Modi came to this venue for the first time to take oath as Prime Minister, and now once again greeted by his colleagues, he takes his seat on the dais to await the arrival of the President of India, Shri Ramnath Kovind. Loud cheers going on in the audience. We can see raised hands and shouts cheering for Shri Narendra Modi ji. बहुत ख़ास मौका है और सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े देश के बहुत बड़े चुनाव और उसके बाद बेहद शानदार परिणामों के बाद ये अवसर और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन। A greater sense of ease, a greater sense of comfort, and a greater sense of belonging here this time round, as there'll be many familiar faces too in the new council.
the Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, arriving here at the venue. Ours is the largest democracy in the world, and this has been the largest election which has been admired by people all across the world, and people look towards us for the kind of elections that we have been conducting. That's right. In fact, bringing quality and soul to scale and size is not always easy. A lot of dedication, a lot of effort, a lot of hard work. श्रीमती सविता कोविंद, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की पत्नी, Mrs. Savita Kovind, the First Lady of India, the wife of the President of India. As Jocelyn shared with you, the clock is ticking towards the designated time of 7. And slow, you know, when the seconds pass very slowly, that's when you're really waiting for something. And I think we can actually hear the seconds tick this time. And now all eyes are on those 31 steps that lead into the Darbar Hall, and the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, will descend these 31 steps to come to the dais, and then he will administer the oath of office and secrecy to Shri Narendra Modi ji and his Council of Ministers. I think flow and protocol and ceremony, all following a discipline. And what is also interesting to note is that when there are huge crowds, there's another sense of discipline that we look forward to. Buglers will now herald the arrival of the President. देवी और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पधार रहे हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन। The President of India, Shri Ramnath Kovind. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी, मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री D.V. सदानंद गौड़ा, I, D.V. Sadananda Gowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, D.V. Sadananda Gowda, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री राम विलास पासवान। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं नरेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नरेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री रवि शंकर प्रसाद। मैं रवि शंकर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविशंकर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। I, Harsimrat Kaur Badal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law.
without fear or favor, affection or ill will. I, Harsimrat Kaur Badal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री थावर चंद गहलोत। मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं थावरचंद गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। Dr. Subramaniam Jayashankar. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री रमेश पोखरियाल निशंक।
मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। सर आपका आशीर्वाद और भी बुझाई सब काम में आशीर्वाद। श्री अर्जुन मुंडा। मैं अर्जुन मुंडा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अर्जुन मुंडा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर। मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पीयूष गोयल।
मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मुख्तार अब्बास नकवी। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री प्रहलाद जोशी, I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। डॉक्टर श्री अरविंद गणपत सावंत,
मैं अरविंद गणपत सावंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रति मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद गणपत सावंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव इंद्रजीत सिंह। I, Indrajit Singh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Indrajit Singh, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री श्रीपद यशो नायक। मैं
श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्मुख
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रहलाद सिंह पटेल। मैं प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राज कुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री मनसुख मंडाविया। मैं मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। बोलिए मंत्री जी, मैं भी बोलिए। मैं मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ। मंत्री जी कुलस्ते जी, मैं भी बोलना है। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
श्री अश्विनी कुमार चौबे, मैं अश्विनी कुमार चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी कुमार चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संघ के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल, मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। जनरल रिटायर्ड वी.के. सिंह, मैं जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कृष्णपाल। मैं कृष्णपाल गुर्जर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णपाल गुर्जर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री दानवे राव साहेब दादाराव। मैं राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान की और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के न्याय करूंगा। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री परषोत्तम रूपाला। मैं परषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास अठावले। मैं रामदास अठौले सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। साध्वी निरंजन ज्योति। मैं साध्वी निरंजन ज्योति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं निरंजन ज्योति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री बाबुल सुप्रियो। I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall be known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री संजीव कुमार बालियान।
मैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री धोत्रे संजय शामराव। मैं धोत्रे संजय शामराव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं धोत्रे संजय शामराव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। I, Suresh Channabasappa Angadi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Channabasappa Angadi, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate, reveal to any person or any persons any matter without which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for Union, except as may be required for due discharge of my duties as such Minister of State. श्री नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अगले अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री रतन लाल कटारिया, मैं रतनलाल कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के प्रति संविधान और विधि सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रतनलाल कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बी मुरलीधरन, I, V. Muralidharan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, V. Muralidharan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, मैं रेणुका सिंह सरुता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणुका सिंह सरूता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री सोम प्रकाश, I, Som Prakash, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of the India, that I will faithfully and consistently discharge my duties as Minister of State for the Union of, that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution, and that the law without fear or favor, affection or ill will. I, Som Prakash, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री रामेश्वर तेली, मैं रामेश्वर तेली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर तेली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को मैं तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री प्रताप चंद्र सारंगी, मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री कैलाश चौधरी, मैं कैलाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कैलाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती देवाश्री चौधरी,
I, Devasri Chaudhuri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Devasri Chaudhuri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate to reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह समाप्त किया जाए। भारत की जनता ने अगले 5 वर्षों के लिए देश की बागडोर जिसके हाथों में सौंपी है, उस सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है। अभूतपूर्व परिणाम और अब है देश में नई सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल भविष्य में भारत और भारत के भविष्य को तय करेगा। The oath of office in secrecy administered to Prime Minister Narendra Modi and his new Council of Ministers. As vows are taken anew and congratulatory greetings exchanged, dedication is renewed. India looks forward to the future. We trust that governance will facilitate the fulfillment of the aspirations of nearly 1.3 billion Indians. These are moments of celebration and bonhomie, and of course, a photo op. But knowing Modi ji's dedication and commitment to his goals, it will be back to work for him and his Council of Ministers sooner than we know. Much has been achieved in the last 5 years, but there is a long road ahead.
यादगार पल यादों में रहते हैं, तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। आज के ऐसे ही क्षण कैमरों में सिमट रहे हैं। 26 मई 2014 भी एक यादगार दिन था और 30 मई 2019 को यादों में समेटने का यह अवसर। समय है तस्वीरों का। The Prime Minister's new council and colleagues will stand strong and committed to ensuring that actions result from the Prime Minister's vision of a new India, while treating the salient features of the Indian Constitution as sacred. As any group of elected representatives begin a new tenure of governance anywhere in the world, there is a renewed energy and a desire to make a difference. And once again, words of wisdom inscribed at the base of the Jaipur column here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan need to be shared. In thought, faith. In word, wisdom. In deed, courage. In life, service. So may India be great. कहते हैं आस्था और विश्वास तर्क से ऊपर होते हैं। ये बात सही उतरती है जब लोग तर्क करते रहते हैं और आस्था जीत जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। The foreign dignitaries and special invitees now being invited up for a photo opportunity over here with the President of India, Shri Ramnath Kovind, and Prime Minister Narendra Modi. Of course, these are special moments for each and every Indian and for everybody present here, but also special moments for all those dignitaries who have graced this occasion. And as we capture on your screens moments of these memories, these leaders will take back with them these memories too, captured for posterity. भूटान के प्रधानमंत्री माननीय लोटे शेरिंग, Dr. Lote Shering, Prime Minister of Bhutan. नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। Mr. Oli is the 38th Prime Minister of Nepal and one of our closest neighbors in terms of relationships. मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। As a founding member of BIMSTEC, India remains committed to deepening cooperation within BIMSTEC and regarding BIMSTEC as a gateway to the seas of the littoral states, as well as access to the landlocked member countries, Bhutan and Nepal. And as collaboration is the best way for any country to progress, BIMSTEC is a natural choice to fulfill our foreign policy.
बिम्स्टेक देशों के प्रमुख और मॉरिशस के प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे मेहमान रहे। इन सभी देशों से हमारे रिश्ते बड़े पुराने और गहरे हैं। The President of Kyrgyzstan, His Excellency Mr. Shoronoboy Jivenkov. He is also the current chair of the Shanghai Cooperation Organization. श्रीलंका के राष्ट्रपति माननीय मैत्रीपाला सिरिसेना। The pearl drop in the Indian Ocean, Sri Lanka. Beautiful country, warm people, represented here today by Mr. Maitripala Sirisena, the President of Sri Lanka. बिम्स्टेक देशों में दुनिया की लगभग 22% आबादी रहती है। इन देशों की संयुक्त जीडीपी $3 ट्रिलियन को छूने जा रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति माननीय मोहम्मद अब्दुल हामिद। Bangladesh, a neighboring country, we have strong cultural and linguistic and ethnic ties with. India and Bangladesh share over 4,000 kilometers of borders, which are the longest land boundary that India shares with any of its neighbors. दुनिया में बिम्स्टेक देशों का ये समूह अपनी समान संस्कृति, मूल्यों और जीवन जीने के तरीकों से अपने भविष्य को मिलकर संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच है। Absolutely. Old friendships being renewed and new ones being formed. The world today is closer than it ever was, and no country can grow and prosper in isolation. India has always endeavored to forge international friendships. Modi ji has taken this tradition to higher levels. We see this in full measure in the presence of the heads of state of BIMSTEC countries and the President of Kyrgyzstan and the Prime Minister of Mauritius. An opportunity to bring together like-minded countries with a common commitment to peace, prosperity, and the development of their people. Many of them with shared heritage, all of them with shared values.